Hello dear students. So today we will start the new topic socialism in Russia. So before this topic I taught you about the economy and society of Russia. Okay, and there you can see how was the condition and how much people were involved in only in agriculture. So in socialism in Russia before 1914, all political parties were illegal in Russia. Okay, and the Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 19, 1898. Right, and this was the one of the party which was formed, but it works secretly. Means Social Democratic Workers Party. It was known as Social Democratic Labour's Party also, right? So who, because they all those who were in this party, they respected Karl Marx ideas. They followed the Karl Marx ideas. So it had to be operate as a illegal organization because it was um, illegal as per the rules, but they worked secretly. ये जो काम करते थे बहुत secretly काम करते थे. Okay, and it had to appear as illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers, and organized strikes. So this was the work. Okay, and idea of Russian socialists regarding uh, Russian peasants and natural socialist, they are natural socialist, right? The idea of Russian society regarding uh, Russian peasants are natural socialist. उनको क्या कहा गया, एक natural socialist कहा गया. Why? Do you know why? Because the custom of dividing land, which is match with social ideology. Okay, क्योंकि ये मैच करता था द सिस्टम विच आई टोल्ड यू अबाउट हियर. यस लिसन. ओके, व्हाट दे वर डूइंग, ये लोग जो है लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ठीक है, देन उसके बाद उस पर काम किया जाता था. सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड पार्टी का ज़्यादा काम स्पेशली दे वर डूइंग इन अर्बन एरियाज. ओके, and peasants, especially peasants, formed the Socialist Revolutionary Party. अब यहाँ पे you can see one was the party was this Social Democratic Workers Party and another party was, यहाँ पे जो है peasants ने भी क्या कर दी, अपनी एक पार्टी फॉर्म कर दी which was Socialist Revolutionary Party. ओके, सो इट वर्क सीक्रेटली. ये भी क्या करते थे, बहुत सीक्रेटली वर्क करते थे बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड टू मेक पार्टीज. राइट, सोशल डेमोक्रेट्स वर डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपस में ये लोग एक दूसरे के क्या करते थे, काउंटर करते थे. जब सोशलिस्ट एंड पीजेंट्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, सो डेमोक्रेट्स were against it. Means they counter, Democrats counter peasants because they are somewhere poor or somewhere rich. Okay, so there were parties were formed. Two parties were formed, right? One was Social Democratic Workers Party, another was Socialist Revolutionary Party, जो कि किसने फॉर्म करी थी, peasants ने. एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज वर, ये डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने फॉर्म किए थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज रिगार्डिंग द party was divided over the strategy of organization. Means here this party, which party, Russian Socialist Democratic Workers Party, right? Which party, which I told you, this one, Social Democratic Workers Party. It was also split in two parties. One was one was Bolshevik, and I'll write here in short Bolshevik, and another one Menshevik.
Okay, so Bolshevik and Menshevik is the Russian language, in Russian language, इसकी लैंग्वेज में ये वर्ड है. एंड बोल्शविक में जो है रशियन लैंग्वेज में से बोला जाता है मेजॉरिटी. ओके, मेजॉरिटी मीन्स हियर मेजॉरिटी जो थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी बोल्शविक की. ठीक है, और यहाँ पे जो थे कंट्री के माइनॉरिटी पोर्शन वाज इन बोल्शविक. So who's leading this party? By व्लादिमीर लेनिन. बोल्शविक को व्लादिमीर लेनिन जो है वो लीड कर रहे थे. ओके, एंड मेंशविक को अनदर फंक्शन ऑफ द पार्टी हैड बाय जूलियस मार्टो. ओके, जूलियस मार्टो. यहाँ पे कौन थे? व्लादिमीर. राइट नाउ बोल्शविक में क्या था कि Vladimir believed that party should be disciplined and should control the number and equality of its member. मीन्स इसको कंट्रोल में रखा था. मीन्स मेंबर जो है वो क्वालिटी मेंबर होने चाहिए एंड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी. मीन्स यहाँ पे कंट्रोल मीन्स द मेंबर वॉज क्वालिटी मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग या कह सकते हैं वो ही इसमें क्या थे, सिलेक्टेड पीपल्स वर इन दिस पार्टी, इन दिस फंक्शन. राइट, एंड व्हाट अबाउट द मेंशविक? दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. व्हाट दे बिलीव? जूलियस मार्टो जो है वो इस फंक्शन में क्या था कि यहाँ पे कोई दैट वाज नॉट लिमिटेड और डिसाइडेड कि कितने होने चाहिए, बट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. मीन्स कि ये एज ए जर्मनी की तरह वर्कर्स पार्टी की तरह वर्क कर रहे थे. राइट, सो दिस स्प्लिट हैपेंड इन 1903. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज turbulent time. So what is the meaning of turbulent, students? It means not stable. Okay, not stable. So ये जो टाइम था, इट वॉज द टाइम विच वॉज एक रिवोल्यूशन वाला टाइम स्टार्ट हो चुका था इन 1905. सो सो देयर वर सम चेंजेस. जो चेंज में एक ग्राउंड की ज़रूरत थी. राइट, तो यहाँ पे थे ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी इसका मतलब होता है वर्क्स एज पर द rulers. Okay, work as per the ruler. This is autocracy. Right, so that time Tsar was not subject to parliament. No discussion. कोई डिस्कशन ही नहीं होता था. 1% सेंटर्ड हो गया था. जो ये टाइम था, इट वॉज द टाइम कि 1% गिव ऑर्डर और उसी के अकॉर्डिंग एवरी वन हैड टू डू वर्क. Right, so what do you think? Were people happy with this system? No, no one happy. Okay, so social democrats and socialist revolutionaries. Do you know, students, before this topic I told you about the social democrats and social revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution. तो इन्होंने जो दो पार्टी के लोग थे, उन्होंने किसके लिए काम किया? पीजेंट एंड वर्कर्स के लिए. एंड व्हाट दे डिड? द रिवोल्यूशन ऑफ 1905. ये 1905 रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड दे डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट they demanded a constitution and parliament. Okay, और यहीं पे थे मुस्लिम dominated, which were jadidist who wanted modernized Islam to lead their societies. जो ये काम करने वाले थे, ये भी क्या करना चाहते थे? अपने मुस्लिम्स इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे. ओके, सो इन 1904 दैट वाज द टाइम व्हेन प्राइसेस ऑफ essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. It means prices were continuously
रेजिंग मीन्स बढ़ती जा रही थी, एंड पीपल रियल वेजेस डिक्लाइन मीन्स कि पीपल की वेजेस तो वही है, बट प्राइजेस जो हैं असेंशियल जो गुड्स हैं उनके प्राइजेस हाई होने की वजह से वो उनके लिए थोड़ा सा दे वर फेसिंग प्रॉब्लम. Okay, so assembly of Russian workers which was a call for industrial action. तो यहाँ पे क्या होने लगा, रशियन वर्कर्स की एक असेंबली बैठी, एंड ड्यू टू दिस वर्कर्स एसोसिएशन में बढ़ते जा रहे थे, जो इस एक एसोसिएशन बना था उसमें बहुत सारे वर्कर्स इंक्लूड होते जा रहे थे. एंड यहाँ पे पुटिलोव आयरन वर्कर्स. ओके, यहाँ पे है पुटिलोव आयरन वर्कर्स. इन लोगों को जो है जो वर्कर्स थे इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया. ओके, दोज हु वर द वर्कर्स इन दिस आयरन पुटिलोव आयरन जो वर्कर्स थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया. तो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन कि 10,000 वर्कर्स इन पिट्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. जो जितने लोग काम कर रहे थे और जो कुछ लोगों को जो हटा दिया गया था, सो 1,10,000 वर्कर्स जो हैं दे वेंट फॉर अ स्ट्राइक. एंड व्हाट दे डिमांडेड, they demanded for a reduction in the working day and 8 hours. ठीक है, ये वन that was the one demand. What they demanded in strike, reduction in working day to 8 hours, and second one increase in wages, and the third was improvement in working condition. So there were three especially they demanded for the workers, right? So when the changes was demanded, जैसे जैसे वो changes हुए demanded में, so they went, the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace. Now what is Winter Palace? Winter Palace जो है एक महल था, right? So जो फादर गैपन के पास बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो गए, एंड इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स. सो जो वर्कर्स थे इनके ऊपर किसके थ्रू अटैक किया गया, पुलिस एंड कोसैक्स. एंड व्हाट इज़ कोसैक, कोसैक इज़ द सीक्रेट पुलिस. ओके, सीक्रेट पुलिस, राइट. सो ओवर over 100 workers were killed and about 300 wanted. Means कि this was the time which all this happened on 22 January. Right, 22 January 1905, and that day was known as Bloody Sunday. और इस डे को क्या कहा गया, bloody Sunday. And from this day this was the time, this was the day. After that all this series of event, that was a series of event, started a series of event. यहीं से जो है एक शुरुआत हुई सीरीज़ की, ठीक है, इवेंट्स के सीरीज़ की, राइट. सो आफ्टर दैट स्ट्राइक्स जो है वो हुआ वो ऑल ओवर द कंट्री, एंड मैनी मोर पीपल, दोज जो थोड़ा हायर स्टेटस के लोग थे लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, दे ऑल वर इन्वॉल्व इन दिस event, right? Now demanded, वो डिमांड वॉज फ्रॉम वाइड सेक्शन. अब बहुत लोग जो हैं इस डिमांड के लिए दे टुक स्टैंड. सो व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ दिस डिमांड, रिवोल्यूशनरीज फोर्सेस क्रिएट्स प्रेशर ऑन किंग. ठीक है, अब ऐसा करने के बाद धीरे धीरे द किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया. तो सार ने क्या किया, ही अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. पार्लियामेंट को ही ड्यूमा कहा जाता है. सो दैट वाज द ड्यूमा. ड्यूमा का फॉर्मेशन किया गया, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है. बट व्हाट ही सेड डिज़ाइन मीन्स नेम ऑफ पार्लियामेंट है ड्यूमा. डिज़ाइन बनाने से पहले राजा से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी चीज़ के लिए वो डिस्कशन करेंगे, राइट. डिसाइड करने से पहले किसी भी चीज़ के लिए ही सेड टू देम टू टेक बिफोर टेकिंग डिसीजन जो है वो डिस्कशन किंग के साथ होगा, राइट. नेक्स्ट सार ने जो है आफ्टर दैट कुछ ही दिनों में, आफ्टर सम टाइम, उसने इस ड्यूमा को क्या कर दिया, डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 70 डेज. बहुत कम दिनों में उन्होंने पहली जो पार्लियामेंट है उसको डिसमिस कर दिया. एंड द री इलेक्टेड
ड्यूमा। उसके बाद दोबारा से ड्यूमा इलेक्टेड हुआ, विच वॉज वर्कड फॉर ओनली 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए वर्क हुआ और वो भी क्या हो चुका था, इट वॉज ऑल्सो डिसमिस। एंड द थर्ड लास्ट वन जो ड्यूमा फॉर्म किया गया, दैट टाइम he changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politician। लेकिन जब थर्ड Duma it was formed, उन्होंने क्या किया किंग ने कि इसमें सारे के सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को इसमें पैक कर दिया। ओके, मीन्स लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट, इनको इस ड्यूमा से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, राइट। दैट्स वाई ओनली दिस ड्यूमा, थर्ड ड्यूमा वर्क्स कंप्लीटेड 5 years। जो चेंज नहीं हुआ, जिसमें चेंजेस नहीं हुए, दैट वाज द थर्ड। फर्स्ट वाज 70 days, विद इन 70 days उसे डिसमिस कर दिया। एंड द सेकेंड वन को भी 3 months के अंदर डिसमिस कर दिया, बिकॉज हेयर जो है कंजर्वेटिव्स लिबरल्स वर इन्वॉल्व इन दिस। बट थर्ड वन को जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को इसमें पैक कर दिया गया इस पार्टी, इस पार्लियामेंट में। दैट्स वाई इट कंप्लीटेड 5 years। और इसमें से लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज को कम्प्लीटली आउट रखा। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट। थैंक यू सो मच।